الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من شوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر اس سے پہلے کہ میں اپنی گزارشات کا آغاز کروں جن مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے آج کس مجلس کا انتظام کیا گیا ان کے درجات کی بلندی کے لیے اور ایصال ثواب کے لیے جملہ مومنین مومنات شہداء اسلام اور ایسے تمام افراد کے جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں سب کے درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد کیونکہ ایک والد کی ایصال ثواب کی مجلس ہے اور مجھ سے یہ خواہش کی گئی کہ میں قرآن حکیم اور معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے فرامین اور سیرت کے تناظر میں والدین کا مقام ان کی عزت ان کی حرمت ان کے شرف اور ان کے حقوق سے متعلق کچھ بیان کروں میرے عزیزو قرآن حکیم کوئی ضخیم کتاب نہیں ہے ایک مختصر کتاب ہے جو کل 6236 آیتوں پر مشتمل ہے ہمارے پاس 150-200 جلدوں پر مشتمل کتابیں قرآن ایک مختصر کتاب ہے اور قرآن نے جزیات کو بیان نہیں کیا قرآن حکیم نے قوانین بیان کیے اصول بیان کیے ضابطے بیان کیے بلکہ اس سے بھی بالاتر قرآن حکیم نے جوامع الکلم کو بیان کیا جن سے پھر خود سینکڑوں ہزاروں قوانین اصول اور قواعد استنباط ہوتے ہیں استخراج ہوتے ہیں بہت سارے ایسے واقعات ہماری زندگیوں میں دین کے ایسے موضوعات ہیں جن کا قرآن نے صرف ایک مرتبہ ذکر کیا آیت کے ایک ٹکڑے میں ذکر کیا اور پلٹ کر پھر دوبارہ ذکر نہیں کیا اس کے باوجود کچھ موضوعات ایسے ہیں جنہیں قرآن نے بار بار بیان کیا اور تسلسل سے بیان کیا ان موضوعات میں سے ایک بڑا موضوع والدین کا مقام ان کی عزت ان کی حرمت ان کے حقوق انبیاء کی جو دعائیں ہیں 20 دعائیں ہیں
उनसे अलग 14 मकामात पर कुरान ने वालिदैन के मकाम और हुकूक को बयान किया, और 14 में से 4 मकाम वो हैं जहां अल्लाह ने अपनी तौहीद के बयान के फौरन बाद वालिदैन के मकाम और हुर्मत को बयान किया। और इन 4 मकामात में से सिर्फ एक मकाम की तरफ मैंने इशारा किया, जो आया मजीदा आपके सामने पड़ी। ये कुरान की 2 आयतें, सूरह मुबारक इसरा जिसे सूरह बनी इसराइल कहते हैं आप, इसकी 23वीं और 24वीं आयत। अब बाशऊर अहले इल्म और बेहतरीन समाअतों के हामिल मोमिनीन तशरीफ फरमाएं। मैं इशारे देके आगे बढ़ूंगा, आप खुद इस आयत का लबो लहजा देखें, उसलूब देखें, लफ्जों का चुनाव देखें, आगाज और अंजाम। व क़ज़ा रब्बो का, तुम्हारे रब का ये हतमी फैसला है, आखिरी फैसला है, जिसके ऊपर किसी नजरसानी की गुंजाइश नहीं। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू, तुम्हारे रब का ये हतमी फैसला है, अल्लाह तअबुदू, कि तुम किसी की इबादत न करो, इल्ला इय्याहु, सिवाय उसके, वबिल वालिदैनि इहसान, और वालिदैन के साथ इहसान करो। क्या मतलब एहसान का, अभी अर्ज करूंगा। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर, अगर तुम्हारी जिंदगी में बूढ़े हो जाए, अहदुहुमा, दोनों में से एक, औ किलाहुमा, या दोनों, फला तकुल लहुमा उफ, खबरदार इन्हें जिंदगी में कभी उफ न कहना। वला तनहर होमा, कभी इन्हें न झिड़कना। वकुल लहुमा कौलन करीमा, इनके साथ हमेशा नरमी से गुफ्तगू करना। वहफिज लहुमा जनाहुल मिनर रहमा, और अपने दोनों शाने, अपने दोनों कंधे इंतहाई अदब के साथ इनके सामने झुकाए रखना। और जब जब इनके चेहरों पे निगाह पड़े, अपने परवरदिगार से क्या मांगना, वकुर रब्बिरहमहुमा, ऐ मेरे परवरदिगार तू इन दोनों पर उसी तरह से रहमत नाजिल फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जिस तरह से इन दोनों ने बचपने में मेरी परवरिश की, मेरी तरबियत की। वालिदैन का एहतराम और इताअत और फरमाबरदारी क्यों वाजिब है? जब ये सवाल इमाम चहारुम सैयद शुहदा हुसैन इब्न अली के फर्जंद अली ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पूछा, फर्जंद रसूल, ए हुसैन के बेटे बताइए, क्यों वालिदैन की इज्जत और एहतराम और उनकी फरमाबरदारी वाजिब है, उनकी इताअत क्यों वाजिब है? फरमाया 2 वजूहात की बिना पर। जिन 2 वजूहात की बिना पर अल्लाह की परस्तिश और बंदगी वाजिब है, इन्हीं 2 वजूहात की बिना पर वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी वाजिब है। परवरदिगार की परस्तिश, बंदगी क्यों वाजिब है हम पर? इसलिए कि पहले मरहले में अल्लाह इंसानों का खालिक है। अल्लाह ने हमें अदम से वजूद दिया, नहीं से है बनाया, और खल्क करने के बाद अल्लाह ने हमें हमारे हाल पर नहीं छोड़ा, हमारी रुबूबियत की। चूंकि अल्लाह हमारा खालिक भी है, रब भी है, इसलिए अल्लाह की परस्तिश और बंदगी हर इंसान पर वाजिब है। इमाम चहारुम फरमा रहे हैं, अगर अल्लाह सिर्फ हमारा खालिक होता और रब कोई और होता, तब भी बशर पर अल्लाह की विलायत वाजिब नहीं थी।
और अगर खालिक कोई और होता और अल्लाह सिर्फ इंसानों का रब होता, तब भी अल्लाह की बंदगी बशर पर वाजिब नहीं थी। क्यों वाजिब है? खालिक भी है, रब भी है। इमाम फरमाते इन्हीं दो वजूहात की बिना पर वालिदैन की इताअत वाजिब है। क्यों? इसलिए कि वालिदैन अल्लाह की इन दोनों सिफात के मजहर हैं। सिफत खालिकियत हक ताला को इस कायनात में ज़ुहूर मिला वालिदैन के जरिए से, और सिफत रुबूबियत परवरदिगार इस आलम हस्तबूद में मुतजल्ली हुई वालिदैन के जरिए से। अगर ये वालिदैन का वसीला ना होता, ना हम अदम से वजूद में आते, ना हमारी परवरिश हो सकती। ये पहली बात। और एक बाशऊर ज़हन में जो दूसरा सवाल उठता है कि जब परवरदिगार इंसानों पर अपने वालिदैन की इताअत वाजिब करार दे रहा है और साथ में खुद अपनी इताअत वाजिब करार दे रहा है, तो क्या अल्लाह की और वालिदैन की इताअत में वहदत है? नहीं, कभी भी टकरा सकती हैं। सिर्फ अल्लाह और मासूमीन की इताअत में कहीं पर टकराव नहीं है, इसलिए कि ये 14 के 14 अल्लाह की रजा के मजहर हैं। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, ये 14 सिर्फ वही चाहते हैं जो वो चाहता है, और खुदा सिर्फ वही चाहता है जो ये 14 चाहते हैं। अल्लाह की और मोहम्मद और आले मोहम्मद की रजा में, इनकी मशीयत में वहदत है, लेकिन इनके अलावा किसी भी इंसान की बात अल्लाह की बात से टकरा सकती है, खा वो वालिदैन क्यों ना हो। अल्लाह कुछ कहे और वालिदैन उसके बरअक्स कुछ और कहें, तो ऐसी सूरत हाल में किसकी माने? जबकि परवरदिगार इंसान को अपनी इताअत का भी हुक्म दे रहा है, अपने वालिदैन की इताअत का भी हुक्म दे रहा है, और टकराने की सूरत में फिर किसकी इताअत की जाए? तो यहां मैं आपकी खिदमत में कानून, उसूल, कायदा और जाबिता अर्ज करने लगा हूं कि हमारा कोई भी काम 5 हालतों से बाहर नहीं है। या वाजिब है, या हराम है, या मकरूह है, या मुबाह है, जायज, और या मुस्तहब है। छठी कोई हालत नहीं है। इन 5 में खुदा कहां है और वालिदैन कहां है? इन 5 में से सिर्फ 2 में अल्लाह पहले है, वालिदैन बाद में, और बाकी 3 में वालिदैन पहले हैं, अल्लाह बाद में। ये खुद खुदा का हुक्म है। सिर्फ वाजिब में और हराम में अल्लाह की इताअत है। बाकी जितने मुस्तहब्बात हैं, जिनकी तादाद 2000 शरीयत में लिखी गई, ये पानी पीना, रात में खड़े होकर पानी पीना मकरूह है, बैठ के पीना मुस्तहब है। जितने भी मुस्तहब्बात हैं, इनमें वालिदैन पहले हैं, अल्लाह बाद में। खुदा खुद हुक्म दे रहा है यहां पर वालिदैन की बात मानो। जितने भी मकरूहात हैं, वालिदैन पहले हैं। जितने भी जायज काम हैं, इनमें वालिदैन, मां बाप पहले, अल्लाह बाद में। नमाज पढ़ना वाजिब है। जैसे आपने मगरिब और इशा की अभी नमाज पढ़नी है और जोहर और असर से फारिग हुए, नमाज पढ़ना वाजिब है, लेकिन अव्वल वक्त में नमाज पढ़ना वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। नमाज पढ़ना वाजिब है, लेकिन मस्जिद में आके पढ़ना वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। नमाज पढ़ना वाजिब है, लेकिन जमात के साथ पढ़ना मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। अब अगर वालिदैन नमाज से रोकें, आप नहीं मानेंगे, क्योंकि वाजिब में अल्लाह की इताअत है। लेकिन अगर यह कहे कि मस्जिद जाके ना पढ़ो, घर पढ़ो, अब घर में नमाज पढ़ना वाजिब है। अगर मस्जिद में जाके पढ़ी, जो काम मुस्तहब है, सवाब है, गुनाह बन जाएगा, क्योंकि वालिदैन की इजाजत नहीं है। जमात के साथ पढ़ना मुस्तहब है, लेकिन बाप या मां या दोनों रोक दें, अब अगर जमात के साथ पढ़ेगा गुनहगार है। अव्वल वक्त में पढ़ना मुस्तहब है, लेकिन बाप कहे कि बैठो, पांव दबाओ, या जाओ फलां चीज लेके आ जाओ, या भी घर के काम करो, बाद में पढ़ना, भी काफी वक्त है। अब अगर कहेगा नहीं मैंने तो अव्वल वक्त में पढ़नी, अगर अव्वल वक्त में पढ़ेगा गुनहगार है।
तहज्जुद, नमाज शब मुस्तहब। लेकिन अगर बाप या मां रोक दें, अब अगर तहज्जुद पढ़ेगा गुनहगार है, उम्रे पे जाना और बहुत सारे काम जो मुस्तहब हैं, वालिदैन के मना करने के बाद ये गुनाह हो जाएंगे। जितने भी मकरूहात हैं, मसलन दो खवातीन चल रही हैं बाजार में, इनके बीच में से गुजरना ये मकरूह है, कब्रों के कतबे पढ़ना मकरूह है, रात में खड़े होकर पानी पीना मकरूह है, सालन को गर्म चीज को फूंके मारना मकरूह है। लेकिन अगर वालिदैन किसी मकरूह काम का हुक्म दे दें, अब वो करना पड़ेगा। तमाम मुस्तहब्बात में, तमाम मकरूहात में, तमाम जायज कामों में वालिदैन पहले। सिर्फ वाजिब और हराम में अल्लाह पहले। वाजिबात में से भी सिर्फ वाजिब ऐनी, जितने वाजिब किफाई हैं इनमें वालिदैन पहले हैं, अल्लाह बाद में। ये दूसरी बात। और अब तीसरा सवाल के जो एक बाशऊर ज़हन में उठ सकता है वो ये कि ये इस सूरत में कि अगर अल्लाह और वालिदैन की बात आपस में टकरा जाए, अगर खुद वालिदैन की बात आपस में टकरा जाए तो किसकी माने? बाप कुछ और कहे और मां कुछ और कहे, अब बाप की माने या मां की माने? यह सवाल भी चौथे इमाम से किया गया। फरजंद रसूल ने फरमाया कि यहां पर अल्लाह ने 4 हक बाप को दिए, इसमें मां शरीक नहीं है, और 1 हक परवरदिगार ने मां को दिया, इसमें बाप शरीक नहीं है। पहला हक, बाप को अपनी औलाद के ऊपर हक के विलायत हासिल है। आजकल हमारे मुआशरे में और हमारी सोसाइटी में यह कहा जाता है कि मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अगर लड़की यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, लड़का यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, ऑफिस में दोनों कोलीग हैं, दोनों के बीच महंगी ईजाद हो जाए और फैसला कर ले हमने शादी करनी है, और जाके कोर्ट मैरिज कर लें, शादी कर लें अदालत में जाके, और इत्तला दे दें हमने तो शादी कर लिया है। इस शादी की क्या हैसियत है? अगर लड़का भी राजी है, लड़की भी राजी है, लड़की भी राजी, लड़की की मां भी राजी, इसकी तमाम बहनें, भाई, चचा, ताया, मामू, नाना, नानी, तमाम रिश्तेदार सब के सब राजी सिवाय बाप के। लड़की खुद राजी, इसके सारे रिश्तेदार राजी, और प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हुक्म दे कि इस लड़की का इसके साथ निकाह होना चाहिए, और चीफ मिनिस्टर या अदालत उज़्मा का जो सरबराह है, काज़ी उल कुज़्ज़ात, चीफ जस्टिस, वो हुक्म जारी करे कि इनका निकाह होगा, और मुफ्ती आजम उठे इस लड़की और लड़के का निकाह पढ़ाए, इस निकाह की शरई हैसियत क्या है? कोई हैसियत नहीं है, उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दें जब तक लड़की को बाप की इजाजत हासिल ना हो। यह हक परवरदिगार ने बाप को दिया, इसमें मां शरीक नहीं है। जब तक बाप की इजाजत ना हो एक बाकिरा बच्ची का, लड़की का निकाह मुमकिन नहीं है, कतई तौर पर शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरा हक जो दीन ने बाप को दिया, बाप की कज़ा नमाजें और रोजे ये बड़े बेटे पर वाजिब हैं। मां की कज़ा नमाजें और रोजे ये बड़े बेटे पे वाजिब नहीं है। अगर वो खुशी से पढ़ दे अलग बात है, लेकिन बाप की जो नमाजें छूट गई, रोजे वाजिबात जो रह गए, ये बड़े बेटे पर वाजिब है कि अदा करे। तीसरा हक जो दीन ने बाप को दिया और मां शरीक नहीं है, बाप को अपनी औलाद के घर में दाखिल होने के लिए इजाजत नहीं चाहिए, मां को इजाजत चाहिए। चौथा फर्क, बाप अपनी औलाद की इजाजत के बगैर उनके माल में तसर्रुफ कर सकता है, ये चोरी की जुमरे में नहीं जाएगा, लेकिन अल्लाह ने यह हक मां को नहीं दिया। मां बगैर इजाजत के औलाद के माल में अगर तसर्रुफ करेगी, ये सिरका और चोरी की जुमरे में जाएगा। ये 4 हक अल्लाह ने और दीन ने बाप को दिए, इसमें मां शरीक नहीं है। 1 हक परवरदिगार ने मां को दिया, इसमें बाप शरीक नहीं है। इमाम से पूछा कि अगर एक ही वक्त में बाप बुलाए, उसी वक्त मां बुलाए, किधर जाए? फरमाया मां की तरफ जाए। क्यों? इसलिए कि एक तो मां का दिल नाजुक है, अगर इनकार करेगा चोट लगेगी। दूसरे, मां ने इसकी विलादत, हमल और इसके दूध पिलाने की सख्तियों और जहमतों को बर्दाश्त किया, इसलिए अगर एक वक्त में बुलाया जाए तो मां की तरफ जाए। दीन ने, शरीयत ने, कुरान ने, मासूमीन ने, पैगंबर ने, आइम्मा ने वालिदैन के 80 हुकूक बयान किए। 40 हुकूक का ताल्लुक वालिदैन की जिंदगी से और 40 हुकूक का ताल्लुक वालिदैन के दुनिया से चले जाने के बाद से।
अगर जिंदगी के हुकूक अदा करे लेकिन मरने के बाद हुकूक अदा न करे, यह भी आक और नाफरमाबरदार शुमार होगा। जो 80 हुकूक हैं उनमें से 40 दुनिया के साथ खास हैं, 40 उनके दुनिया से चले जाने के बाद। इनमें से 10 का ताल्लुक माल से है, 10 का ताल्लुक जुबान से है, 10 का ताल्लुक दिल से है। दीन हमें इजाजत नहीं देता कि हम अपने वालिदैन से आगे चलें, मगर उनकी जान खतरे में हो इस सूरत में आगे चल सकते हैं। परवरदिगार हमें इजाजत नहीं देता कि हम अपनी आवाज अपनी वालिदैन की आवाज से बुलंद करें, हमारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे। दीन औलाद को इजाजत नहीं देता कि अपनी वालिदैन को हुक्मन कोई चीज कहें। मसलन बाप किसान है, रेडी लगाता है, मजदूर है, जाहिल है, अनपढ़ है, बेटा PhD डॉक्टर है या मुज्तहिद बन जाए, आलिम बन जाए। मसलन बाप अगर शुगर का मरीज है और बेटा डॉक्टर है और पता है कि चीनी शक्कर इसके लिए मुज़िर है और वो उठा के गुड़ खा रहा है, चीनी खा रहा है, ये हुक्मन नहीं कह सकता, गुनहगार होगा। इल्तिमास कर सकते हैं, दरखास्त कर सकते हैं कि बाबा जान ये चीज आपके लिए मुज़िर है, ये दवा आपके लिए मुफीद है, ले लीजिए। इस तरह से माल से मुतल्लिका हुकूक जिन्हें मैं फिर कभी अर्ज करूंगा, वक्त महदूद है, मैं तेजी से कुछ मरहल आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूं। ये 80 हुकूक जिन्हें दीन ने वालिदैन के लिए बयान किया, क्या ये हुकूक सिर्फ उन वालिदैन के लिए जो नेक हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, नमाजी हैं, मोमिन हैं? अगर किसी का बाप मोमिन नहीं है, मुनाफिक है, या इससे भी बढ़कर अगर किसी के वालिदैन काफिर हैं, मुशरिक हैं, यहूदी हैं, गैर मुस्लिम हैं, क्या ये 80 हुकूक उनको भी हासिल है? क्या अगर वो भी आपको मुस्तहब काम से रोकें तो रुकना पड़ेगा? क्या अगर वो आपको मकरूह काम का अम्र करें तो करना पड़ेगा? जो हुकूक बाकी वालिदैन को हासिल है, मुसलमान वालिदैन को हासिल है, कि अगर वालिदैन गैर मुस्लिम हो उनको भी हासिल है, उनको भी हासिल है, कोई फर्क नहीं। खत्मी मर्तबा से जब पूछा गया, फरमाया 3 चीजों में काफिर और मुसलमान का फर्क नहीं है। एक वादे में, वादा मुसलमान के साथ करो तब भी निभाना वाजिब है, काफिर के साथ करो तब भी निभाना वाजिब है। अमानत मुसलमान की अगर तुम्हारे पास हो तब भी उसकी पासदारी वाजिब है, काफिर की हो तब भी उसकी पासदारी वाजिब है। वालिदैन अगर मुसलमान है तब भी उनकी इताअत वाजिब है। वालिदैन अगर गैर मुस्लिम, गुनहगार, शराबी, बदकिरदार हैं तब भी औलाद पर उनकी इताअत वाजिब है। क्या कोई इंसान अपने वालिदैन की इताअत से मुस्तस्ना है? इस कायनात का कोई भी इंसान वालिदैन की इताअत से मुस्तस्ना नहीं है, खा वो नबी क्यों ना हो। 25 नबी, 25 अंबिया हैं जिनका जिक्र कुरान ने नाम लेके किया है। 25 अंबिया का जिक्र है कुरान में, लेकिन किसी भी नबी का जिक्र एक जगह इकट्ठा नहीं है। सबसे ज्यादा जिक्र अंबिया में से जनाब मूसा अलैहि व अला नबीना अला फतहियत व सना आपका जिक्र है, लेकिन टुकड़ों में। सूरह अल बकरा में है, सूरह बनी इसराइल में है, बाकी सूरह दूसरी सूरह में, आल इमरान वगैरह में, एक जगह नहीं है। हत्ता पैगंबर गिरामी इस्लाम का जिक्र कुरान में एक जगह इकट्ठा नहीं आया, टुकड़ों में आया, थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन एक नबी ऐसे जिनसे मुतल्लिक परवरदिगार ने मुसलसल 111 आयतें उतारी और उनके नाम का सूरा है कुरान में। वो कौन है? जनाब यूसुफ अलैहि व अला नबीना अला फतहियत व सना। ये यूसुफ जिन्हें अल्लाह ने और कुरान ने जवानों के लिए आइडियल करार दिया, इनके किरदार को सराहा, पसंद किया। जिस खूबसूरती से जनाब यूसुफ ने अपनी इफ्फत और अपने किरदार को बचाया, जबकि जुलेखा पूरी तरह से जनाब यूसुफ की तरफ बढ़ चुकी थी। कालत है ही तलक कि सारे दरवाजे बंद थे और गुनाह के सारे मौके मयसर थे। यही यूसुफ जो अपने बाप याकूब के ऊपर हक के विलायत रखते हैं, नबुव्वत में इनका मकाम याकूब से बुलंद है, लेकिन कई सालों की तवील जुदाई के बाद वो मरहला जिस दिन बाप और बेटे की मुलाकात हुई, इधर से जनाबे याकूब अपने बेटों के साथ चल रहे हैं मिस्र की तरफ, दूसरी तरफ से जनाबे यूसुफ अमायदीन सल्तनत के साथ, अपने वजीरों के साथ, मुशीरों के साथ, खवास के साथ अपने बाप की तरफ बढ़ रहे। जैसी बाप बेटे का सामना हुआ दूर से, जैसी जनाबे याकूब की निगाह पड़ी, यूसुफ को देखा, वह रफ्तगी के आलम में खुद को सवारी से नीचे उतारा और दौड़ते हुए चल पड़े।
और जब अपने बाप को जनाब यूसुफ ने दौड़ते हुए देखा तो अब सोच में पड़े कि मैं क्या करूं, सवार होके आगे बढ़ूं या नीचे उतर जाऊं। हुकूमत के आदाब का तकाजा है, हुकूमती प्रोटोकॉल का तकाजा है कि मैं भी बाकी वजीरों और मुशीरों से सवार होके जाऊं। इसी सोच में आगे बढ़ रहे थे सवार होकर। फिर जब मुसलसल अपने वालिद को तेजी से आगे बढ़ते हुए देखा तो सवारी से नीचे उतर आए और पैदल बढ़े आगे। लेकिन इससे पहले कि जनाब यूसुफ जनाब याकूब किससे गले मिलते, बाप बेटे से मिलता, परवरदिगार ने जिब्राइल को भेजा। जिब्राइल आए, जनाब यूसुफ को सलाम किया और कहा कि खुदा ये फरमा रहे कि अपना दाहिना हाथ खोलो। जनाब यूसुफ ने अपना दाहिना हाथ खोला तो एक नूर आसमान की तरफ बुलंद हुआ, साते हुआ। हैरत से यूसुफ ने पूछा, ए जिब्राइल ये कैसा नूर था? कि ये नूर नबुव्वत था। अल्लाह ने नूर नबुव्वत को तुम्हारे सुल्ब से वापस ले लिया है। अब तुम खुद तो नबी होगे लेकिन तुम्हारी औलाद और नस्ल में कोई नबी नहीं आएगा। कहे जिब्राइल मुझसे क्या हुआ? कहा कि ए यूसुफ तूने अपने बाप के एहतराम में उतरने में ताखीर की है। याकूब पहले उतरे, तू बाद में उतरा है और खुदा को यह नागवार गुजरा है, नापसंद गुजरा है। इसके बजाय इन्हीं के बड़े भाई हैं जनाब लावी, इमाम सादिक फरमाते हैं कि अल्लाह ने नूर नबुव्वत को जनाब यूसुफ के सुल्ब से लेकर इनके बड़े भाई जनाब लावी के सुल्ब में करार दिया। और हजरत मूसा कलीम चौथे सिलसिले में आकर जनाब लावी की नस्ल से आते हैं। और जनाब लावी इतने अजीज थे अल्लाह की बारगाह में कि जब जनाब मूसा जाते थे कोई तूर और सिलसिले गुफ्तगू शुरू होता तो अल्लाह मूसा का नाम नहीं लेता था, यूं फरमाता था यब्न लावी, ए लावी के फर्जंद। इमाम से पूछा गया क्यों नूर नबुव्वत को अल्लाह ने यूसुफ के सुल्ब से लेकर जनाब लावी के सुल्ब में रखा? कि इसलिए कि जनाब लावी हद दर्जा अपने बाप के मोती और फरमाबरदार थे। पहली मर्तबा जब जनाब यूसुफ को कत्ल करने लगे बाकी भाई, लावी आगे बढ़ा, ला तख्तुलू यूसुफ, यूसुफ को कत्ल ना करो, वल्कू फी गयाबतिल जुब, इसे कुएं में फेंक दो, तुम्हारी जान छूट जाएगी, कोई आने जाने वाला काफिला इसे उठा के ले जाएगा और हम वापस चले जाएंगे, तुम बाप की तवज्जो के मरकज बन जाओगे। लावी का मकसद यह था कि अगर कुएं में फेंका गया शायद मेरा भाई बच जाए और कभी ना कभी मेरा बाप इसे दोबारा देखने में कामयाब हो सके। और दूसरी मर्तबा जब यूसुफ ने अपने सगे भाई बिंजामीन को किसी बहाने से मिस्र में अपने पास ठहरा लिया और बाकी भाइयों से कहा जाओ, सब चल पड़े, लावी रुक गया। कहा मैं एक मर्तबा अपने बाप का दुखी चेहरा देख चुका हूं, अब मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं दोबारा अपने बाप का उदास और दुखी चेहरा देखूं। वो एक बेटे की जुदाई का सदमा बर्दाश्त कर चुका है और वो दूसरे बेटे की जुदाई का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैं उस वक्त तक मिस्र की सरजमीन नहीं छोड़ूंगा जब तक अल्लाह की निशानियों में से कोई वाज़ेह निशानी ना आ जाए या खुद मेरा बाप याकूब मुझे हुक्म ना दे कि लावी वापस आ जाओ। कोई नबी मुस्तस्ना नहीं है, कोई सहाबी मुस्तस्ना नहीं है। एक सहाबी आया खत्मी मर्तबत की बारगाह में, या रसूल अल्लाह बताइए मेरा मरहूम भाई इस वक्त जन्नत में किस हाल में होगा? तो कौन सी जन्नत? कहा आपने नहीं फरमाया कि शहीद पर जन्नत वाजिब है? कहा मैंने कहा था शहीद जन्नत में जाएगा। कहा मगर मेरा भाई जंग में शहीद नहीं हुआ। कि जंग में शहीद हुआ, कि फिर आप क्यों फरमा रहे हैं कि वो जन्नत में नहीं है? कि मेरे सहाबी तुम्हारा भाई शहीद हुआ लेकिन तुम्हारा भाई अपने वालिदैन का नाफरमाबरदार था और अल्लाह ने जन्नत को वालिदैन के नाफरमाबरदार के ऊपर हराम करार दिया है। कितनी सूरतें कुरान हकीम की? 114 सूरतें। और इन 114 सूरतों में से सबसे बड़ा सूरा कुरान मजीद का सूरह मुबारक अल बकरा जो 2.5 पारों पर मुश्तमिल है। सूरह कौसर है, बाकी आप सूरतें देखें कैसे कैसे नाम है, लेकिन इस सूरा का नाम बकरा। अगर पंजाबी में आपसे पूछें कि कुरान की सबसे बड़ी सूरा का नाम क्या है, पंजाबी में बताइए, आप क्या बताएंगे? बकरा तो अरबी में, उर्दू में क्या बोलेंगे? गाय। अगर आपने किसी की हिमाकत बयान करनी हो अपनी सोसाइटी में तो आप कहते हैं फलाना तो अल्लाह की गाय है। इन्हीं अहमक और बेवकूफ है। और अल्लाह ने कुरान के सबसे बड़े सूरा का नाम क्या रखा? बकरा। 8वें इमाम अली इब्न मूसा रिजा से पूछा कि इस सूरा का नाम सूरह बकरा क्यों रखा गया?
दरहाली के इसके अंदर सैकड़ों दूसरे वाकयात मौजूद हैं, लेकिन नाम एक वाक़े की मुनासबत से गाय रखा गया। फरमाया इसलिए अल्लाह ये चाहता था कि सबसे पहले इंसान इसी वाक़े की तरफ मुतवज्जे हो। ये कौन सा वाक़या है? जनाब याकूब की औलाद में से, जिनका दूसरा नाम इसरा था, इसराइल, बनी इसराइल में से, औलाद याकूब में से एक शख्स ने अपने चचा के बेटे को आधी रात कत्ल किया, क्योंकि उसकी मंगेतर के ऊपर इसकी निगाह थी, ख्वाहिश थी कि मैं शादी करूं। उसे कत्ल किया बहाने से, और जिनके साथ दुश्मनी थी इसके चचा के बेटे की, लाश उठाई और घसीटते हुए उनके दरवाजे के ऊपर फेंक दिया। ये तासुर देने के लिए कि इनकी आपस की लड़ाई चल रही थी, इन्होंने कत्ल किया। जब सुबह उठे तो अब हर तरफ एक बात फैली और अब तलवारें निकल आई, कौन कातिल है? झगड़ा शुरू हो गया कबीलों में, 2 से 3 अफराद मारे गए। और अब बनी इसराइल परेशानी के आलम में जनाबी मूसा के पास गए, ए नबी खुदा, हमारे बीच जंग छिड़ चुकी है और बहुत खून खराबा होगा, आप खुदा से मदद लीजिए और बताइए कि असली कातिल कौन है। जनाब मूसा को तूर पे तशरीफ ले गए, मुनाजात की। खुदा ने फरमाया, मूसा, अगर बनी इसराइल औलाद याकूब चाहते हैं कि मैं इनको कातिल का नाम बताऊं, तो इनसे कहो कि गाय को ज़िबा करें, और ज़िबा करने के बाद उसकी दुम को काटें और कटी हुई दुम उस मकतूल के साथ मस करें। वो मकतूल जिंदा हो जाएगा और जिंदा होने के बाद खुद अपने कातिल का नाम बताएगा। लेकिन आपको यहूदियों का मिजाज पता है, जैसे आज हैं ऐसे ही कल थे। तो अब जैसे जनाब मूसा ने कहा कि गाय ज़िबा करो, तो उन्होंने अपना नखराबाजी शुरू की ताकि बच जाएं किसी तरह से। कहा, है मूसा, कैसी गाय होनी चाहिए? जवान हो, बूढ़ी हो, किस तरह की हो? कहा, ला फारजुन वला बिक्र अवानुम बेन ज़ालिक, न बूढ़ी हो न बच्ची हो, दरमयानी हो। का रंग कैसा हो? कफा के लौनुहा तसुर्रुन नाज़रीन, जर्द रंग की हो ताकि देखने में अच्छी लगे। और क्या खुसूसियत हो? ये हो और ये हो और ये हो। जब सारे सवाल किए और कोई सवाल नहीं बचा, अब खुदा ने फरमाया कि फफ़अलू मा तुमरून, जो तुम्हें हुक्म दिया गया इस पर अमल करो। अब जो शराइत इस गाय में मुशक्कस हुई, अब ढूंढना शुरू हो गया, वो गाय मिल नहीं रही। और पूरे खित्ते में जाकर सिर्फ एक जवान है जिसके पास ये गाय है। और अब इमाम रिजा ये रिवायत बयान फरमा रहे हैं। वो जवान कौन है? ये जवान एक ताजिर था, तिजारत करता था, और एक मर्तबा इसने किसी के साथ मुआमला किया और उनसे कहा कि मैं तुम्हें इतनी रकम दूंगा जिन्स के बदले में। और जब वो रकम उठाने के लिए गया, मामला तय होने के बाद, तो जो संदूक था जिसमें ये रकम थी, उसकी चाबी इसके बाप के तकिए के नीचे थी और बाप आराम कर रहा था, सो रहा था। ये खड़े होकर सोचने लग गया कि मैं बाप को जगाऊं, चाबी लूं, पैसे निकालूं, उनको दूं, या फिर उनसे मामला बातिल कर दूं। तो सोचा, ख्याल आया कि माल दुनिया है, फिर मिल जाएगा, मैं क्यों माल दुनिया के लिए अपने बाप के आराम को ख़राब करूं। तो ये सोच करके वापस चला गया और उनसे कहा, मुझे मुआफ़ कर दें, मैं किसी मजबूरी के बायस आपके साथ ये मामला नहीं कर सकता। उनका आपको फ़ायदा है? कि मुझे फ़ायदा नज़र आ रहा है, लेकिन मेरी कुछ मजबूरी है, मैं ये नहीं कर सकता। उन्हें वापस रुखसत किया। और बाप जब जागा, उठा और पता चला कि उसके बेटे ने उसके आराम की खातिर दुनियावी मफाद को ठोकर मार दी। खुश हुआ और अपने बेटे के हक़ में दुआ की। मैंने रिवायतों में देखा है, दुनिया जाती है उलमा के पास, पीरों के पास, मुख्तलिफ अफराद के पास, मेरे लिए दुआ करो, लेकिन सबसे जल्द जिस ज़ात की दुआ इंसान के हक़ में कबूल होती है, वो बाप की दुआ औलाद के हक़ में। इससे जल्द किसी और की दुआ कबूल नहीं होती। आप तमाम अहादीस के ज़ख़ीरे को उठाकर देख लीजिए। बाप ने दुआ की और उसके बाद एक गाय थी, कहा, बेटे ये रख लो, मेरी तरफ से तोहफा है, तुम्हें काम आएगी। अब इमाम रज़ा फरमाते कि जितनी भी खुसूसियात उस गाय की सवालात के बाद कुरान ने बयान की, परवरदिगार ने बयान की, वो सारी की सारी खुसूसियात उस गाय के अंदर जमा थी। अब गए, जाके देखा तो गाय तो मिल गई। अब खरीदना चाहते हैं, लेकिन वो जवान बेचने के लिए तैयार नहीं है, कहीं मेरे बाप की यादगार है, मैं नहीं देना चाहता। बेलाखिर जनाब मूसा से कहा कि आप कुछ बताएं, कोई और गाय ज़िबा कर दें, वो तो जवान नहीं बेच रहा। करना, अल्लाह फरमाते वही गाय हो उसी को ज़िबा किया जाए।
और जब उसकी दुम मारी जाएगी तब वो उठ के अपने कातिल का नाम बताएगा। कि वो नहीं दे रहा, कि राजी करो उसे। जनाब मूसा ने खुद सिफारिश की, अब जवान राजी हुआ तो अब सवाल ये हो कि इसकी कीमत क्या हो। तो जनाब मूसा से कहा कि आप बताएं। जनाब मूसा ने कहा कि खुदा का ये हुक्म है कि गाय को ज़िबा किया जाए और उसका पेट चाक किया जाए और गोदा निकाला जाए अंदर से सब कुछ, और जितना सोना इसके पेट के अंदर समा सकता है इसकी कीमत है। यहां पर इमाम रिज़ा फरमाते हैं कि कुछ नेक काम ऐसे हैं जिनकी जजा अल्लाह आखिरत में देगा, और कुछ बुरे काम ऐसे हैं जिनकी सजा अल्लाह आखिरत में देगा। लेकिन कुछ नेक काम ऐसे जिनकी जजा अल्लाह इसी दुनिया में देता है और सजा भी इसी दुनिया में देता है। और इनमें से सरे फहरिस्त वालिदैन की इताअत। अगर कोई वालिदैन का मुती है तो जजा इसी दुनिया में मिलेगी, और अगर कोई वालिदैन का नाफरमाबरदार है तो इसी दुनिया में रुस्वा होगा। परवरदिगार निज़ाम कायनात, निज़ाम इलल व अस्बाब है। जब उन्होंने जनाब मूसा से कातिल का नाम पूछा, जनाब मूसा या बता दीजिए, ना बताते, ये क्यों का गाय ज़िबा करो? इसलिए कि अल्लाह ये चाहता था कि एक तरफ कातिल का नाम भी पता चल जाए और दूसरी तरफ जो अपने बाप का मुती और फरमाबरदार है उसको उसके अमल की जजा भी इसी दुनिया में मिल जाए। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। वक्त तेज से गुजर रहे हैं, मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करना चाहता हूँ। मुझे जो ख्वाहिश की गई मैं चाहता हूँ कि मैं उसी हवाले से आपकी खिदमत में अर्ज करूँ। ये तस्वीर का एक रुख है, और दूसरा रुख एक सहाबी बुजुर्ग अपने बेटे को लेकर पैगंबर के पास पहुंचा कि या रसूल अल्लाह, ये मेरा बेटा मेरा ख्याल नहीं रखता, मेरी ज़रूरियात को पूरा नहीं करता। पैगंबर ने उसके बेटे से कहा कि अपने बाप का ख्याल रखो। कहा क्या करूं, मैं खुद मकरूज हो चुका हूं, मेरी अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं होती। फरमाया कर्ज लेकर अपने बाप की ज़रूरतों को पूरा करो। उसने बहानाबाजी की तो खत्मी मर्तबा ने फरमाया अंत व मालुका ले अबीक, तू और तेरा माल दोनों तुम्हारे बाप का है। लेकिन जब उसने ज्यादा कट हुज्जती की, खत्मी मर्तबा ने फरमाया जाओ, चले जाओ। उसे रुखसत किया और उसके बाप का, उस सहाबी का वजीफा बैतुल माल से मुअय्यन किया और कहा जब भी तुम्हें ज़रूरत हो मेरे पास आ जाना। तुम्हारा बेटा अपने माल से अपनी दुनिया भी बना सकता था, आखिरत भी बना सकता था, लेकिन अब ये दुनिया में भी रुसवा होगा, अनकरीब मरेगा, और जब मरेगा तो हमेशा जहन्नुम में जाएगा। कुछ दिन गुजरे, इधर मैंने एक कुरानी वाक़या आपके सामने बयान किया, और अब मैं दूसरा कुरानी सिर्फ एक इजमाली सा वाक़या बयान करके ज़ामत तमाम करूं। ये इधर से उठा, ये खजूरों का कारोबार करता था। अब किसी के साथ मुआमला किया है इस जवान ने, तो अब पैसे लिए, खजूरें देनी थी, और जब गोदाम खोला तो खजूरों में कीड़ा पड़ चुका है। अब पैसे वापस की और अलग से रकम दे के गोदाम खाली करवाया, और फिर कुछ दिनों में बीमार पड़ा। बच्ची खुची रकम थी अपनी बीमारी के ऊपर, इलाज के ऊपर सर्फ की, और अब खाने के लिए भी कुछ नहीं है। अब कुछ दिन गुजरे, ये हड्डियों का ढांचा बन गया, इससे चला नहीं जा रहा। एक दिन ये हड्डियों का ढांचा बन चुका है, मुश्किल से कभी बैठ जाता है, कभी उठता है, दीवार का सहारा लेके चल रहा है। सामने से पैगंबर इकराम इस्लाम सहाबा के साथ गुजर रहे थे, रुक गए जैसे ही उसको देखा। फरमाया मेरे सहाबियों, अगर कोई अपने वालिदैन के नाफरमाबरदार को देखकर इबरत हासिल करना चाहता है तो इस जवान को देखो। ये अपने माल से अपनी दुनिया भी बचा सकता था, आखिरत भी बना सकता था, लेकिन ये इस हाल में है, अनकरीब मर जाएगा, और जब मरेगा हमेशा के लिए जहन्नुम की आग में जलेगा। कोई शहीद मुस्तस्ना नहीं है, कोई नबी मुस्तस्ना नहीं है, कोई सहाबी मुस्तस्ना नहीं है। वालिदैन जब तक जिंदा हैं तब भी अपनी औलाद के लिए मजरे फैज हैं, और जब वालिदैन दुनिया से चले जाएं तब भी अपनी औलाद के लिए मजरे फैज हैं। एक सहाबी आया पैगंबर इकराम इस्लाम की खिदमत में, या रसूल अल्लाह, मैं जो भी कारोबार शुरू करता हूं मुझे नुकसान होता है, अब मकरूज हो गया हूं, मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मुझे कारोबार में कामयाब करे। फरमाया मेरे पास क्यों आए हो? फिर किसके पास जाऊं? अपने वालिदैन के पास जाओ। कहा वो मर चुके हैं, इंतकाल हो चुका है। फरमाया मर चुके तो क्या हुआ, उनकी कब्र पर जाओ और उनकी कब्र को वसीला बनाकर अल्लाह से मांगो, अल्लाह तुम्हारे वालिदैन की कब्र के वसीले से तुम्हारी मुश्किलात को आसान कर देगा।
बस अब मैं ख़त्म कर रहा हूँ गुफ्तगू, वक्त ख़त्म हो रहा है मेरे अजीज़ों। बहुत सारे मतालिब हैं लेकिन अब गुंजाइश नहीं है कि मैं उनके बयान कर सकूं। अगर कोई इंसान चाहता है कि उसे तूले उम्र नसीब हो, मैं 20 सैकड़ों अहादीस और कुरानी वाक़यात को मद्देनजर रख कर ये चंद बातें आपसे करने लगा हूं। अगर चाहता है कि तूले उम्र नसीब हो, अगर चाहता है कि उसे अचानक मौत ना आए, अगर चाहता है कि मरने से पहले उसे तौबा की तौफीक हो, अगर चाहता है कि उसे रिस्क मिले, रिस्क में वसअत हो, अगर चाहता है कि उसके रिस्क में बरकत हो, अगर चाहता है कि उसके आमाल अल्लाह की बारगाह में कबूल हो, अगर चाहता है कि उसकी औलाद और उसकी नस्लें उसकी मुती और फरमाबरदार हो, अगर चाहता है कि हादसाती मौत से बचे, अगर चाहता है कि मरते हुए तौबा की तौफीक हो, अगर चाहते हैं कि कब्र में जाकर हिसाब व किताब में सख्ती ना और फिशार कब्र से बच जाए और आखिरत में हिसाब में आसानी हो, अंबिया का हमनशीन बने, अगर चाहता है कि कयामत के दिन उसे मोहम्मद वाले मोहम्मद की शिफात हासिल हो, तो सबसे बड़ा नुस्खा यह है कि वो अपने वालिदैन की इताअत करे, उनकी फरमाबरदारी करे। वरना अली ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि जाओ और जाकर अपने वालिदैन के नाफरमाबरदार को अली ज़ैनुल आबिदीन का ये पैगाम पहुंचा दो कि तू जितनी नमाजें पढ़ सकता है पढ़ ले, और जितनी दुआएं मांग सकता है मांग ले। अली ज़ैनुल आबिदीन हुसैन का बेटा तुझसे ये कह रहा था कि अल्लाह की बारगाह में ना तुम्हारी कोई नमाज कबूल होगी, ना तुम्हारी कोई दुआ मुस्तजाब होगी। अगर जिंदगी चाहिए, अगर बरकत चाहिए, अगर इज्जत चाहिए, अगर औलाद की इताअत चाहिए, अगर वक्त मौत आसानी चाहिए, ये वालिदैन की इताअत फरमाबरदारी है। मेरे वक्त खत्म हो रहा है, बस मैं आखिरी जुमले अर्ज करूं। एक जुमला शायद मैंने आपके यहाँ कभी अर्ज किया, यानी ये जुमला रूह है कुरान है। कौन है वालिदैन? कुरान के आयात की तनाजुर में जुमला अर्ज करने लगा हूं कि हम इंसान पैदा नहीं हुए, बल्कि हम इंसान बनने के लिए पैदा हुए हैं। और इंसान साजी के जो अवामिल, जो फैक्टर्स बयान किए गए वो 6 हैं। 3 हिडन और 3 ओपन है, 3 खफी और 3 जली। जो अवामिल खफी हैं, एक तौफीक, एक दुआ, एक तवारुस सिफात, और जो अवामिल जली हैं, एक मुआशरा, एक उस्ताद, एक वालिदैन। ये 6 अवामिल हैं जो हमें इंसान बनाते हैं। और इन 6 में से सबसे बड़ा फैक्टर वालिदैन, और वालिदैन में से भी सबसे बड़ा फैक्टर और अहम तरीन आमिल खुद माँ है। ये जो पैगंबर ने फरमाया कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, वाकई ऐसे, लेकिन जन्नत हर माँ के कदमों के नीचे नहीं है। जन्नत सिर्फ उस मां के कदमों के नीचे है जो मां अपनी औलाद को जन्नती बनाने की सलाहियत रखती है। एक बाकिरदार और नेक मां, ये इंसान साजी का कारखाना है, ये अपनी नस्लों को इंसान बनाती है। इसलिए खत्मी मर्तबत ने सुहाबा से फरमाया, मेरे सुहाबा मुज़बला से बचो। किसी ने पूछा मुज़बला क्या है? फरमाया वो खूबसूरत फूल जो किसी गंदगी के ढेर पे उगता है। फरमाया या रसूल अल्लाह, आप क्या कहना चाहते हैं? फरमाया ए मेरे सहाबा, ऐसी खूबसूरत खातून जो देखने में खूबसूरत है लेकिन इसकी तरबियत और परवरिश किसी गंदे खानदान में हुई हो, तुमने इसे अपनी नस्लों के लिए मां बनाना है, इसलिए इसके इंतखाब में दिक्कत करो, जुस्तजू करो। इस वक्त तक जो आप कायनात में बड़ी बड़ी शख्सियतें देख रहे हैं, इस तारीख इंसानी में 8,500 साल इंसानी तारीख में जितनी भी बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं, सलामत रहे, अगर इनकी अजमत और कामयाबी का राज तलाश करना चाहें तो सबसे बड़ा फैक्टर इन शख्सियतों की अजमत और कामयाबी के पीछे मां है। ये मां इंसान साजी का कारखाना है, इंसान साजी की फैक्ट्री है।
8,500 साल इंसानी तारीख में अब तक 21 तहजीबें गुजर चुकी हैं, 21 तमद्दुन, 21 सकाफतें, 21 कल्चर। इन दुनिया की 21 तहजीबों में कुछ कदरें हैं, कुछ वैल्यूज हैं। मुमकिन है एक इंसानी तहजीब के यहां एक शय की कदर हो, लेकिन दूसरी तहजीब में उसका वो मकाम ना हो। लेकिन एक कदर और एक वैल्यू वो है जिसे इन 8,500 सालों में हर इंसानी तहजीब ने सबसे ज्यादा पसंद किया और सबसे ज्यादा सराहा, और उस कदर का नाम वफा है। और इस कायनात में वफा की मेराज का नाम अबुल फजल अब्बास है। ये अब्बास कहां से बने, कैसे बने? अबुल फजल अब्बास किसी फिरके की मीरास नहीं है, किसी गिरोह की मीरास नहीं है। अबुल फजल अब्बास सरमाए बशरियत है, मीरास इंसानी है। कयामत तक आने वाला इंसान सर बुलंद करके फख्र कर सकता है कि मैं उस जमीन पर जिंदगी गुजार चुका हूं जिस जमीन पर अब्बास चला करते थे। सिर्फ शिया की बात नहीं है, सिर्फ सुन्नी की बात नहीं है। खैर मुस्लिम जो अबुल फजल अब्बास से मुताल्लिक जैसे जैसे उनके किरदार से आशना हो रहे हैं, एक हिंदू शायर है जिसने शेर लिखा, का है जहां में इस कदर मखमूर गम अब्बास का, और नक्शे सजदा बन गया है हर कदम अब्बास का। और बिदअतें कहकर मुसलमान जब अलग हो जाएंगे, हिंदू होकर हम उठाएंगे अलम अब्बास का। बशरियत को नाज है अब्बास पर। लेकिन ये अब्बास कैसे अब्बास बने? इसलिए कि अली के बेटे, अली के तो 18 बेटे हैं, हसन और हुसैन के अलावा, जनाब अब्बास के अलावा बाकी 15 बेटे हैं। बहुत सारे अफराद हम में से ऐसे होंगे जिनकी बाकियों के नाम भी ना याद हों, लेकिन कौन सा इंसान है जो अब्बास को नहीं जानता? कैसे अब्बास बने? क्या इसलिए कि अली जैसा बाप मिला? वो तो बाकी औलाद भी है ना। अब्बास बनने के लिए अली जैसा बाप होना काफी नहीं है, उम्मुल बनीन जैसी मां होना भी शर्त है। और ये बात हमें सिखाने के लिए अमीरुल मोमिनीन जो खुद बाब मदीनतुल इल्म है, खुद इंतखाब करें, लेकिन ना अपने बड़े भाई अकील से कहा। फरमाया, अकील आप माहिर इल्म अंसाब अरब हैं, जाएं ढूंढें किसी ऐसे खानदान को जिससे ऐसी शुजा खातून मिले कि जो मुझे करबला में मेरे बेटे हुसैन की फौज का अलंबरदार दे सके। जनाब अकील पहुंचे, कहां गए? कबीला बनी किलाब के सरदार जनाब हिजाम के पास, और मिले और जैसी गुफ्तगू शुरू की और अपने आने की गायत बयान की, जनाब हिजाम उठ के खड़े हो गए कि मैं इतना खुश नसीब कि दामाद मुस्तफ़ा मेरा दामाद बने, मुझे कबूल है। कहा लेकिन मेरे भाई अली की शर्त ये है कि आपकी बेटी से भी पूछा जाए, उनकी रिजायत भी दरियाफ्त की जाए। और जब जनाब हिजाम ने अपनी जोजा को अपनी बेटी के पास भेजा कि पूछो अमीरुल मोमिनीन अली का रिश्ता आया है, उनका जवाब क्या है, तो बेटी ने बस एक बात कही, कहा माँ मुझे और तो कुछ नहीं पता, मैं बस इतना जानती हूँ कि रात जब मैं सो रही थी तो मैंने आलम ख्वाब में एक इंतहाई नूरानी चेहरे वाली बीबी को देखा। वो आगे बढ़ी और मुझसे कहा, ए उम्मुल बनीन मेरा नाम फातिमा ज़हरा है और मैं तुम्हारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी हूँ। ये आगे बढ़ी, मेरी पेशानी का बोसा लिया और मुझसे कहा, ए उम्मुल बनीन मुबारक हो कि अनकरीब तू मेरे बेटे अब्बास की माँ बनने वाली। फिर वो दिन आया जिस दिन अक़्द हुआ, और बहुत तफसीलात हैं, बस में बात ख़त्म हुई। 2 जुमले अर्ज़ करूँ ताकि मजलिस मुकम्मल हो जाए। और फिर वो दिन कि जिस दिन जनाब अब्बास की विलादत हुई, मौला मुत्तकिया ने अपने हाथों पे उठाकर एक कान में आज़ान कही, इकामत कही, दुआएं पढ़ी, सानी ज़हरा आगे बढ़ी। कहा बाबा कुछ लम्हों के लिए भैया अब्बास मेरे सुपुर्द कर दीजिए। हाथों पे उठाया
और बातें करते हुए जनाब अब्बास के कान अपने दहन के करीब ले गई और कुछ जुमले कहे और दोबारा जनाब अब्बास को अपने बाबा की गोद में रख दिया। अली पूछते हैं, बेटी ज़ैनब, आपने अपने भाई अब्बास के कान में क्या कहा? कहा, बाबा मैं अपनी माँ फातिमा ज़हरा की वसीयत पर अमल कर रही थी। माँ फातिमा ने दुनिया से जाते हुए मुझसे कहा था, ए बेटी ज़ैनब, जब तुम्हारा भैया अब्बास दुनिया में आ जाए तो उसे गोद में उठाकर उसके कान में मेरा सलाम कहना, कि माँ फातिमा तुझे सलाम कहती थी। ये अब्बास कौन है जिनके लिए जनाब सैयदा ने अपने हाथ से कुल 2 लिबास तैयार किए। एक कुर्ता जो अमीरुल मोमिनीन 9 साल जंगों में अपनी ज़ेरा के नीचे पहनते थे, और दूसरा कुर्ता किसके लिए तैयार किया? वो जो अभी दुनिया में नहीं आया, अब्बास। बस बातें ख़त्म, एक जुमला अर्ज करके मैं मजलिस ख़त्म कर रहा हूँ। बहुत अजीब ताल्लुक़ है जनाब सैयदा का और जनाब अब्बास का। मैंने रिवायतों में देखा कि एक दिन अमीरुल मोमिनीन घर में दाखिल हुए, देखा सहन में उम्मुल बनीन परेशानी के आलम में चल रही हैं। सलाम किया कि उम्मुल बनीन आप क्यों मुस्तरिब है? काका बहुत वक्त हो गया, अब्बास घर से बाहर हैं और मैं फिक्रमंद हूँ। कि अब्बास छोटे नहीं हैं, आ जाएंगे। काका मैं हासिदीन मदीना से डरती हूँ, कोई मेरे बेटे अब्बास को नुकसान न पहुँचा दे। अगर आपके लिए ज़हमत ना हो तो आप अब्बास को तलाश करके ले आइए। उम्मुल बनीन की ख्वाहिश के एहतराम में अली घर से चले। कहाँ पहुँचे? जन्नतुल बकी। एक कब्र के किनारे खड़े होकर अबुल फजल अब्बास मुसलसल गिरिया कर रहे हैं और ज़ेर लब कुछ जमजमा कर रहे हैं। अली करीब पहुंचे ताकि सुने कि अब्बास क्या बात कह रहे हैं। अब जो करीब पहुंचे तो ये अल्फाज सुने। अब्बास कह रहे हैं, ए बीबी, मैंने सुना है किसी शकी ने आपके ऊपर दरवाजा गिराया था। ए बीबी, मैंने सुना है किसी शकी ने आपके हाथों के ऊपर ताजियाने मारे थे। ए बीबी, मैंने सुना है किसी शकी ने आपकी रुखसार के ऊपर तमाचा मारा था। ए बीबी, काश मैं होता तो देखता कि उसे इतनी बड़ी जुर्रत कैसे होती है।